سے قرآن کی آواز آئے اس کے جب فیصلے فرما۔ ہوسکوٹے تعلق چک گڈیگا نبی گاؤں میں مدرسہ انس بن مالک کے طالب علم نے 2.5 سال میں قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا۔ اس مدرسہ انس بن مالک چک گڈیگا نبی میں روحانی قاعدہ سے تک پڑھائی اور اس کے بعد قرآن پڑھا۔ آپ پہنائیے دونوں ہاتھ سے۔ مولانا جی اللہ صاحب ایسے کھڑی چلا اور تھوڑا ناظرین کرام، صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی۔ ہوسکوٹے تعلق چک گڈیگا نبی گاؤں میں پچھلے 7 سالوں سے قیام و تام کے ساتھ شعبہ حفظ مدرسہ انس بن مالک کے نام کرائے کے مکان پر ایک مدرسہ چل رہا ہے۔ اس مدرسے میں کئی طلبہ شعبہ ناظرہ و حفظ ساتھ میں اردو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے 2.5 سال میں اس مدرسے کا ایک طالب علم محمد سالم نے 2.5 سال میں قرآن مجید کو مکمل حفظ کر کے مدرسے کا نام، اپنا نام، اپنے والدین کا نام اور اپنے ملک و ملت کا نام روشن کیا ہے۔ مدرسے کے محتمم مولانا مجاہد الاسلام رحمانی نے بتایا کہ اس طالب علم نے ابتدائی تعلیم سے لے کر قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا، اس لیے آج یہاں حکیم مولانا منور حسین صدیقی کی سرپرستی میں تکمیل حفظ القرآن کے طور پر علماء و عمائدین شہر کے روبرو دعائیہ پروگرام انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مہمانان خصوصی کے طور پر ہوسکوٹے مکہ مسجد کے امام و خطیب مولانا شائخ ندوی، ہوسکوٹے عطا اللہ خان، کیار پور میڈہلی مسجد نور الہدا امام و خطیب مولانا ضیاء اللہ قاسمی، مدرسہ اصلاح القرآن میڈہلی مولانا جبار قاسمی میڈہلی، مولانا نعیم الدین قاسمی، منور شریف دیگر کو مدعو کیا گیا۔ اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے، اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے، اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے۔ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا اس موقع پر حافظ قرآن نے تلاوت کر کے تکمیل حفظ القرآن کی دعا پڑھی اور آئے ہوئے علماء نے اس بچے کی مزید تعلیم و ترقی کے لیے دعا فرمائی اور ملک میں امن و شانتی بھائی چارگی کے لیے اپنی دعاؤں کے ساتھ پیغام دیا۔ اس موقع پر علماء کے خطابات ہوئے۔ مولانا شائخ ندوی نے کہا کہ علم روشنی ہے، عالم دین کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا بھی امام ہوتا ہے، اس لیے ہر عالم کے پاس دونوں علم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے رابطہ کرے، ہر عالم کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنے تجویز پیش کی جائے گی۔ صدائے ہند اردو، میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی۔ تو یہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے، اس کو آباد کیجیے، ترقی دیجیے، اور الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے اس تعلق میں تقریباً بہت سارے مدارس ہیں۔ میں پہلا 22 سال کی مدت میں پہلی بار ہمارے تعلق کے کسی مدرسے میں دستار بندی میں آیا ہوں جہاں بچے بھی مکمل کریں۔ مدرسے بہت سارے ہیں، اللہ ہر کو ترقی دے، آباد کرے۔ تو میری گزارش ہے خاص شہر والے سے، ہوسکوٹے کے آس پاس، جو ہوسکوٹے سے تقریباً 5-6 کلومیٹر دور ہے، بہت سے لوگ اس مدرسے سے واقف نہیں ہیں،
तो मेरी गुजारिश है होस्कोटे शहर बसने वाले तमाम मुसलमानों से, कभी आप तशरीफ लाइए इस इलाके के अंदर, गट्टी नबी माँ के देखिए, मदरसे तकादे पूरे कीजिए, इंशाअल्लाह ये मदरसा आबाद होगा तो इस इलाके में दीन का खैर फैलेगा। मौलाना, इसी तरह बहुत सारे हुफ़ाज़ और उलमा को असीरी तालीम ना होने की वजह से उलमा आज बहुत परेशान हैं हालात के अतबार से, तो इन हाफिज़ इन उलमा को जो उलूम नबवी मदरसे में दी जाती है तो उनको असीरी तालीम का क्या निज़ाम होगा? नहीं, पहली बात तो उलमा परेशान नहीं है, उलमा खुशहाल है, अल्लाह का फजल है। आलिम सबसे अच्छा खाता है, सबसे अच्छा पहनता है, सबसे ज्यादा सोता है। आप किसी आलिम से पूछ लीजिए। हाँ, यह है कि दुनिया के असबाब उनके पास कम है, लेकिन जो जरूरियात अल्लाह से पूरे कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आलिम सिर्फ दीन का नहीं होता है बल्कि दुनिया का इमाम भी होता है, इसके लिए एक आलिम को भी चाहिए कि दीन और दुनिया दोनों उलूम उसके पास हो ताकि उम्मत की रहबरी कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने इस वक्त रहबरी की है कि जो रिहायशी मदारिस हैं वहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हुकूमत उसे तालीम याफ्ता नहीं मानती है। हमारा एक आलिम दीन मुफ्ती बनता है, कारी बनता है, फाजिल बनता है, लेकिन हुकूमत की निगाह में वो इलिटरेट जाहिल होता है। जब कभी पासपोर्ट बनाया जाता है तो पासपोर्ट में जो कालम होता है ना, ECR नॉन ECR का, वहां पर एक मुफ्ती साहब अनपढ़ करके लिखा जाता है। ये बड़े शर्म की बात होती है। तो उसके लिए अल्लाह हमारे मुल्क में एक सहूलत है, NIOS एक इदारा है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके तहत तमाम रिहायशी मदारिस पढ़ने वाले बच्चे जिनकी उम्र 14 साल के ऊपर है, वो बच्चे अपने मदरसे की तालीम के साथ, हाफिज बनने के साथ, आलिम बनने के साथ SLC के एग्जाम लिख सकते हैं। 14 साल उम्र मुकम्मल है, उनके पास आधार कार्ड है, तो वो बच्चा NIOS के तहत SLC एग्जाम एडमिशन लेगा और मज़ामीन को मुश्किल नहीं होंगे। 5 मज़ामीन होंगे, उर्दू में, अरबी में, सोशल, इंग्लिश, एक और कोई सब्जेक्ट रहता है और ये बहुत आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आसानी से काम कर सकते हैं। तो आपके इस दस्तार जलसे से हमारी गुजारिश है कि हमारे कर्नाटक के तमाम मदारिस वाले अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इसकी फिक्र कर रहे हैं। तकरीबन इस साल 1,500 बच्चे दाखिला भी लेकर हैं। तो तमाम मदारिस वाले जिन बच्चों की जो उम्र 14 साल है वो अपने बच्चे को NIOS में दाखिला कराएं। अगर कोई मदरसे वाला इसका इखराजात पूरे ना कर सकें, इंशाअल्लाह हमारे दीनिया से रब्ता करें, हम मुकम्मल उसकी तरतीब बनाएंगे। इसी के साथ खाली बच्चे ही नहीं बल्कि हमारे जो नौजवान जो ऑटो चलाते हैं, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक है, हमारे बच्चों के पास हुनर है, किसी कंडर में काम कर रहे हो, उनके पास लाइसेंस नहीं है। वजह क्या है? SLC कर को नहीं है। आज DL के लिए SLC कंपलसरी है, इसलिए जो लोग किसी वजह से SLC एग्जाम नहीं लिख सके तो आपके लिए माशाल्लाह बेहतरीन मौका है। बगैर स्कूल गए रोजाना 1 घंटा ऑनलाइन क्लास हम निजाम करेंगे आपके लिए। आप एडमिशन लीजिए, बहुत कम खर्चा, 1,500-2 हज़ार खर्चा आता है। साल में पढ़े तो 4-5 हज़ार खर्चा आएगा। आप एडमिशन ले लें, इम्तिहान लिखें, इंशाअल्लाह जब SLC मार्क्स कार्ड आपको मिल जाएगा फिर आपको भी लाइसेंस मिलने वाला बनेगा। तो मदरसे के तलबा भी दूसरों को इंशाअल्लाह करें, NIOS के तहत बहुत फायदा होगा इसका। आप ही के निगरानी में मदरसा चल रहा है, क्या आज के दौर में हाफिज़ और आलिम बनना ज़रूरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सवाल ही मैं समझता हूँ कि बेमाना है कि आज के दौर में कौन सा ऐसा दौर है जिस दौर में आलिम और हाफिज़ बनना ज़रूरी नहीं है। जैसे बगैर पानी का इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, ऐसे इल्म के बगैर मुसलमान नहीं रह सकता। आपको पता होगा कि प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सबसे पहली जो वही मिली है, उस वही को आप अगर समझेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये इल्म दीन कितनी ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे पहला संदेश मिला, सबसे पहला हुक्म मिला, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उसी की याद दहानी है या अनस बिन मालिक या और दूसरे मदारिस, वो उसी के गर्दान है। हमारा ताल्लुक़ डायरेक्ट जो है सुफ़ा से मिलता है, गारे हिरा से मिलता है और गारे हिरा के ज़रिए से सिदरतुल मुंतहा और अर्श कुर्सी से इसी इल्म के ज़रिए से मिलता है। मौलाना, दूसरा सवाल है, कुरान को सबसे बेहतर कौन पढ़ सकता है? कुरान को सबसे बेहतर, कुरान अल्लाह की ज़ुबान है, अल्लाह से बेहतर और कौन पढ़ सकते हैं? और अल्लाह के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो उसके पीछे जितनी मेहनत करेगा उतना पढ़ता जाएगा। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आलिम हो, हाफिज़ हो,
कोई नॉर्मल इंसान भी अच्छा पढ़ सकता है, जो जितनी कोशिश करेगा अल्लाह अपने इल्म को, अपने नूर को उसी को देता है जो उसकी कदर करता है। तो आज मदारिस की अहमियत, जी, मदारिस की अहमियत क्या रही? मदारिस की अहमियत देखिए, मदारिस ये एक सरचश्मे हयात है। ईमान को ज़िंदा रखने के लिए मदारिस का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज घर घर में कावेरी का पानी आता है, मगर फिर भी हर इंसान को ये महसूस होता है कि भाई अभी हमें और पानी चाहिए। अभी कोलार वाले को कोई जाके पूछे भाई कावेरी की क्या अहमियत है, तो वो बताएंगे क्योंकि भाई उनके सब खेतियाँ सूख रही है। तो ऐसे ही इस दौर में नहीं बल्कि हर दौर में इल्म दीन और मदारिस और मसाजिद और मकाबिर और खानकाहें, ये सब हमारे लिए सरचश्मे हयात है। जब तक ये ज़िंदा है, हम ज़िंदा हैं। अगर मदारिस और मसाजिद को काट दिया जाए तो उम्मत खुद ब खुद मुर्दा हो जाएगी। इस उम्मत को ज़िंदा रहना है तो मदारिस को ज़िंदा रखना है, चाहे वो झोपड़ी के शक्ल में हो, चाहे वो शीट के घरों के शक्ल में हो। जब तक मदरसे हैं तब तक हम हैं, अगर मदरसे नहीं तो मुसलमान भी नहीं। अल्लाह आपके चैनल को भी कबूल फरमाए और यहाँ के आने वाले तमाम मेहमानों का हम शुक्र अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दे करके यहाँ इस प्रोग्राम को कामयाब किया। अस्सलाम वालेकुम। जो गडक नब्बे में जो ये अरबी मदरसा जो कायम हुआ, हमारे को बेहद खुशी है। 10-12 साल के पहले मैं यहाँ से गुजरता हुआ, नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ने मस्जिद पे आया तो एक कोई भी नहीं थे, 1-2 बच्चे उधर पानी पकड़ रहे थे। पूछा क्या मैं कोई नहीं क्या मस्जिद में करता? नहीं हज़रत, यहाँ पर नमाज नहीं होती और अज़ान नहीं होती, यहाँ पे खाली फातिहा दिलाते हैं करके वो बच्ची बोली। उस टाइम पे मेरे दिल को बहुत दर्द हुआ कि क्या अल्लाह ऐसा होके। बात जाकर मैं हमारे शायद साहब से बात किया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। बाद हमारे डॉक्टर साहब से इन सब में बात करें, मशवरा करें, हमें करने में नहीं। बाद में ये हुआ, बाद में वो दिन याद कभी हमने एक ये मिला रास्ता, उसके उसके से और यहाँ के बुजुर्गों की दुआओं से और यहाँ के बुजुर्गों की मदद से यहाँ पे इतना बड़ा जो मदरसा कायम हुआ और यहाँ पे हाफिज़ कुरान मुकम्मल हाफिज़ कुरान बने, इसकी हमें बेहद खुशी है। इंशाअल्लाह इसके पर और ज़्यादा तवज्जो दीजिए हमारे से। शुक्रिया। कि मदरसा किराए पे चल रहा है, तो अभी मालूम हुआ है, तो अभी हम एक नौजवान साथियां हैं, सब मिलकर इस मदरसे की जगह खास हो, ऐसे कोशिश करेंगे बहुत जल्द इंशाअल्लाह।